to YouTube channel. So in this video we're gonna discuss about Python versus JavaScript. आज की वीडियो में हम Python versus JavaScript के ऊपर बात करेंगे कि कौन सी लैंग्वेज आपको करनी चाहिए, कौन सी नहीं. We're gonna discuss about Python and JavaScript, and we'll discuss the features of Python and JavaScript in this tutorial. So let's just start it. कि Python आपको करनी चाहिए या JavaScript. So as you can see, JavaScript is a functional programming language and Python is Python is a functional programming language and JavaScript is a object oriented programming language. तो Python है ना वो functions and classes के ऊपर बात करता है और जो JavaScript है वो objects के ऊपर बात करता है. As you can see from the data कि JavaScript is used by 67% users, which helps me and predicts me कि JavaScript है कि बहुत बढ़िया लैंग्वेज है Python से, क्योंकि Python है वो 41% people यूज़ करें and JavaScript है वो 67% people यूज़ करें. So the next question comes in your mind कि why most people use JavaScript over Python. So we're gonna discuss about in this video. So watch the video carefully, and at the end of the video you're gonna understand why JavaScript is better than Python and should you gonna do JavaScript or Python. Okay, so JavaScript है वो Airbnb कंपनी यूज़ करती है, Reddit यूज़ करता है, Slack and Instagram and Google, and Python is used by Uber, Spotify, Instagram and Netflix. So this is the JavaScript is used by Instagram and Python is used by Instagram. Instagram is used by both. Oh, okay. So next in the next part of the video we're going to discuss कि आपको JavaScript करनी चाहिए या Python. So JavaScript के फीचर्स बताऊंगा आपको कि JavaScript क्या है, JavaScript में आप किस तरीके से काम कर सकते हैं. ओके, सो अब हम बात करेंगे कि हमें Python के फीचर्स कि भाई Python एक्चुअल में हमें क्या क्या करियर प्रोवाइड करेगा Python के बारे में. So we're talking about Python and Pine.js. This is my YouTube channel official, so subscribe that channel for upcoming videos. Okay, we're talking about कि Python. तो Python में हम है ना हमारा करियर बना सकते हैं इन मशीन लर्निंग, इन डेटा साइंस. एज अ डाटा साइंटिस्ट हम Python में जा सकते हैं मशीन लर्निंग, टेंसरफ्लो का यूज़ करके, डीप लर्निंग and artificial intelligence. The reason why I love Python is the Python का जो कोड है वो काफ़ी सिंपल है if we compare it with any other programming language. As you can see, it will print hello world. Okay, it gives print me, it gives this hello world is me. Okay, and the reason why I love Python is based on, as this programming language is based on okay, like this. And what we're gonna do, and we're gonna return, and we're gonna do name return this x comma y and the name, and then using it and using the 1 comma 3 1 comma 2 1 comma 3, and then uses the n1 is equal to this, and then we're gonna say print. And the reason why I love Python is the code is too simple and easy to understand. We can just use function in this way, and we can use variables in this way. So this is the reason why I love Python. की the code is too simple and easy to understand. आप को ज़्यादा इतना मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं है कि जैसे अगर हम JavaScript में लिखते हैं कि let x is equal to 1 and variable x is equal to 1 like this. So comma dot notations वगैरह इनके कारण मैं JavaScript से बेहतर Python को समझता हूँ. एंड द रीज़न कि हम Python में इसलिए जाते हैं क्योंकि Python का जो करियर है वो काफ़ी बढ़िया है एज़ कम्पेयर टू JavaScript. अगर आपने मशीन लर्निंग करनी है ना तो आप जाइए Python पे, अगर आपने मशीन लर्निंग करनी है तो आप जाइए Python पे, ठीक है. क्योंकि Python है NLT के Spark, Theno, NumPy, Keras, TensorFlow, PyTorch, MXNet, Scikit-learn and Pandas. They are some of the library for Python. So
सो दीज आर द लाइब्रेरी ऑफ पाइथन एंड वी डिस्कस कि डाटा साइंटिस्ट आप बन सकते हैं मशीन लर्निंग डीप लर्निंग का यूज़ करके। एंड इंट्रोडक्शन टू कीवी। सो कीवी क्या है? कीवी है, ये है एक तरीके से पाइथन का फ्रेमवर्क जो हम UI लाइब्रेरी है पाइथन की, जो कि हम एंड्रॉयड में, मैक में, लिनक्स में, OS में कहीं भी रन करवा सकते हैं। सो दिस इज़ द बेनिफिट कि अगर एंड्रॉयड का भी करना है, अगर आपने पाइथन कर ली और आपको कहो कि भाई ओहो मेरे को एंड्रॉयड में भी जाना था, एंड्रॉयड वर्ल्ड में, सो यू कैन just do Kiwi and you can do this Android world also. So this is the benefit of Python also, and these are some of the essential libraries which you need to do if you are starting your career in machine learning: Matplotlib, NumPy, Pandas, Scikit-learn and Seaborn. So these are some of the essential library which you need to do if you are doing JavaScript, if you are doing Python. So next we will discuss the features of JavaScript. Next we're gonna discuss the features of JavaScript and why JavaScript is used by users very much. So JavaScript के ऊपर बात करेंगे कि JavaScript एक्चुअल में क्या है. So JavaScript है ना, ये HTML, CSS इनको भी यूज़ करता है. ओके, सो जो JavaScript का बेनिफिट है ओवर पाइथन इज़ दैट कि आप JavaScript का जो कोड है उसको वेब कंसोल में ब्राउज़र में रन करवा सकते हैं. कोई और लैंग्वेज का कोड आप ब्राउज़र में रन नहीं करवा सकते, लेकिन JavaScript का करवा सकते हैं. JavaScript की जो लाइब्रेरी है वो ECMAScript में लिखी गई है और उसको रेगुलरली अपडेट किया जा रहा है. इवन अ वीक, हर रोज़ वीक में आपको इसके अपडेट्स मिलेंगे. काफ़ी फ़ायदामंद, काफ़ी जो फ़ायदा है हमारा JavaScript को यूज़ करने का ओवर पाइथन एंड एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ दैट कि JavaScript को करने से आपको HTML, CSS भी करनी पड़ेगी. और उसका काफ़ी और बढ़िया जो JavaScript का मैं मानता हूँ पर्सनली कि अगर आपको एंड्रॉयड वर्ल्ड में जाना है, तो अगर आपने iOS ऐप बनाने हैं तो आपको स्विफ्ट करनी पड़ेगी. अगर आपने एंड्रॉयड ऐप बनाने हैं तो आपको जावा करनी पड़ेगी. लेकिन आप रिएक्ट नेटिव, ये JavaScript का फ्रेमवर्क है, इसको करने से आप रिएक्ट नेटिव करने से आप iOS ऐप्स भी बना सकते हैं, आप अपने एंड्रॉयड ऐप्स भी बना सकते हो. तो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ JavaScript एंड JavaScript कोड इज़ सो सिंपल. लेट मी एक्सप्लेन यू लाइक console.log एंड दिस hello world. ये hello world लिखने के लिए हुआ और latex इज़ इक्वल टू 1. अगर हम इसमें बात करें ना कि जो JavaScript है उसका कोड ठीक ठाक है. अगर आपने पाइथन करी है तो आपको थोड़ा सा JavaScript का कोड मुश्किल लगेगा, क्योंकि पाइथन का कोड काफ़ी सिंपल है. JavaScript का ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बट ठीक है. एंड we can define classes and functions also in JavaScript. So next we're gonna discuss कि how long does it take to learn JavaScript and get as a ranking job. It totally depends upon you. अगर आपने अपने concepts and basics अच्छे से कर रखे हैं तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. It takes 2 months for you to learn JavaScript and more than that, but it totally depends upon you. And next we're gonna discuss कि JavaScript का करियर. तो JavaScript का यूज़ करके आप वेब डेवलपमेंट में जा सकते हैं, आप मशीन लर्निंग में जा सकते हैं, आप गेमिंग ऑप्शंस में जा सकते हैं. हाँ, तो JavaScript है उसका यूज़ करके आप मशीन लर्निंग में भी जा सकते हो, क्योंकि TensorFlow है वो JS लाइब्रेरी में भी यूज़ कर रहा है. बट पर्सनली आई थिंक्स कि अगर आपने JavaScript कर ली है और आपने मशीन लर्निंग में जाना है, आपको पाइथन करने की ज़रूरत नहीं है. यू कैन स्विच कि आप कंटिन्यू कर सकते हैं JavaScript करने के बाद अपना मशीन लर्निंग में. पाइथन करने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपने पाइथन कर रखी है पहले से और फिर आप JavaScript में जा रहे हो तो आपको सोच समझ के जाना पड़ेगा. अगर आपने पाइथन करी है और अगर आपको अगर वेब डेवलपमेंट में जाना है, JavaScript इज़ फॉर यू. अगर आपने गेमिंग ऑप्शंस में जाना है, JavaScript इज़ फॉर यू. एक्चुअली पाईगेम है पाइथन का, वो भी हमें प्रोवाइड करता है, बट उसके बाद हमें फिर कीवी करना पड़ेगा जो कि एंड्रॉयड के लिए होता है. बट JavaScript है उसके लिए भी हमें करना पड़ेगा. बट अगर आपने गेमिंग में जाना है, Python and JavaScript both are for you. वेब डेवलपमेंट में जाना है स्पेशली, JavaScript is for you. मशीन लर्निंग में जाना है, Python is for you. And I want machine learning, so that's why I prefer Python over JavaScript. And आप अगर कोई भी ट्यूटोरियल देखेंगे तो वो आपको JavaScript बढ़िया बताएगा, कोई आपको Python बढ़िया बताएगा. इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आपने क्या चूज़ करना है. बट
आइदर चूजिंग पाइथन और आइदर चूजिंग जावास्क्रिप्ट और एनी अदर लैंग्वेज। एक आपको प्राइमरी लैंग्वेज रखनी पड़ेगी जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छी आती है, और आपने फर्स्ट एवर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करी है उसी को अपनी प्राइमरी लैंग्वेज करिए। आप ये मत करिए कि आपने पहले पाइथन कर ली फिर आपने जावास्क्रिप्ट करी, आपको लगा कि जावास्क्रिप्ट का कोड ईजी है तो आपने पाइथन छोड़ दी ना। जो फर्स्ट एवर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करी है यू हैव टू चूज दैट। and next we're gonna discuss it. They are the top JavaScript library, you can say PHP, React.js, jQuery and all that. Okay, so अगर अब जैसे हम सबलाइम में हमारा पाइथन का कोड रन करते हैं, रिएक्ट में Node.js इसका यूज़ करके हम हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड भी कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट को हम ब्राउज़र में भी रन कर सकते हैं, उसको हम सबलाइम में भी रन कर सकते हैं। इन ईच एंड एवरी फील्ड जावास्क्रिप्ट इज़ यूज्ड। जावास्क्रिप्ट को हम एंड्रॉयड में भी कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट के काफ़ी फीचर्स हैं, काफ़ी बढ़िया लैंग्वेज है, इसलिए द रीज़न वाई द मोस्ट यूजर्स डू जावास्क्रिप्ट इज़ क्योंकि जावास्क्रिप्ट को हम ब्राउज़र में भी रन कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट उसमें रिएक्ट फ्रेमवर्क का यूज़ करके हम एंड्रॉयड वर्ल्ड में भी जा सकते हैं, iOS वर्ल्ड में भी जा सकते हैं। एंड डिबगिंग का जो ऑप्शन है वो हमारे दोनों के पास ही होता है, पाइथन के पास भी एंड जावास्क्रिप्ट के पास भी। सो नेक्स्ट वी कैन डिस्कस की डिफरेंसेस बिटवीन द पाई एंड जेएस की आपको कौन सी लैंग्वेज करनी चाहिए अच्छे से, और डिस्कस अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन पाइथन एंड जावास्क्रिप्ट। सो पाई एंड जेएस, पाइथन वर्सेस जावास्क्रिप्ट। सो जावास्क्रिप्ट वर्सेस पाइथन में मतलब ये हो गया कि भाई पाइथन करनी चाहिए हमें या जावास्क्रिप्ट। सो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। एंड एज यू कैन सी कि जावास्क्रिप्ट इज़ यूज्ड बाय 67% यूजर्स एज कम्पेयर टू पाइथन, एंड पाइथन 41% यूजर्स यूज़ करें। द रीज़न वाई आई लव पाइथन इज द कोड इज in the Python is too simple, like print hello world, and we compared this with versus the console.log hello world. So जावास्क्रिप्ट है वो है ना, ये है जावास्क्रिप्ट करने का फ़ायदा कि ये बाकी लैंग्वेजेस के बेस्ट मेथड्स को जावास्क्रिप्ट में यूज़ किया गया, बट इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। आइदर यू चूज इज जावास्क्रिप्ट एंड आइदर यूज इज पाइथन। अगर आपने वेब डेवलपमेंट में जाना है यू चूज़ जावास्क्रिप्ट, एंड अगर आपने मशीन लर्निंग में जाना है, डाटा साइंटिस्ट में जाना है, प्रेफरली डाटा विजुअलाइजेशन में जाना है, रिसर्च वर्ल्ड में जाना है, देन पाइथन इज़ फॉर यू। एंड नाउ विल डिस्कस कि जावास्क्रिप्ट क्यों बढ़िया है पाइथन से। अब देखिए, अगर हमें पाइथन में एंड्रॉयड में जाना होता तो हम कीवी का यूज़ करते, ओके, बट जो जावास्क्रिप्ट है इसका जावा से क्या और स्विफ्ट से क्या ज़्यादा बेनिफिट है वो ये कि अगर हमें iOS ऐप्स बनाने तो स्विफ्ट करनी पड़ेगी, लेकिन अगर हमें एंड्रॉयड वर्ल्ड में जाना है, एंड्रॉयड ऐप्स में जाना है तो जावा करनी पड़ेगी। लेकिन रिएक्ट नेटिव है, ये जो रिएक्ट नेटिव है जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क इज़ यूज्ड इन बोथ iOS एंड एंड्रॉयड वर्ल्ड। सो दिस इज़ द रीज़न आई लव JavaScript as compared to Java and Swift. So now you can see ki this is the simple example of the Python code, like while true print x number, and if okay, so this is nothing any problem in this. So and now we're going to discuss ki this is the JavaScript method, and like constructor create kar diya super and this to store and like this. So this is the reason I love Python पर्सनली, कि मैं क्यों पाइथन ज़्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि मेरे को मशीन लर्निंग में जाना है इसलिए। क्योंकि अगर इफ़ यू वांट योर करियर इन मशीन लर्निंग यू स्विच टू पाइथन, एंड इफ़ यू वांट योर करियर इन वेब डेवलपमेंट यू चूज इज जावास्क्रिप्ट। आपने मशीन लर्निंग में जाना आप पाइथन भी कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने डाटा साइंटिस्ट जाना है, डाटा विजुअलाइजेशन, पाइथन इज़ फॉर यू। एंड अगर आपने गेमिंग में जाना है देन बोथ लैंग्वेज इज़ फॉर यू, बट जावास्क्रिप्ट है वो ज़्यादा बढ़िया मानता हूँ मैं पाइथन के कंपैरिजन में। सो विद दिस आई थिंक आप समझ गए होंगे कि आपको पाइथन करना चाहिए या जावास्क्रिप्ट करना चाहिए। ओके, सो विद दिस ट्यूटोरियल इज़ ओवर एंड वी गोना अपलोड few more video on JavaScript and Python for you to understand. So if you are new to this
channels. Please subscribe my channel for upcoming videos. Like करिए, शेयर करिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए एंड फाइनली मैं आपको एक और एडवाइस दूंगा कि अगर आपने पाइथन का रखी है और फिर आप अपना जावास्क्रिप्ट कर रहे हैं तो आप सोच समझ के करिए। मतलब एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको बनानी पड़ेगी प्राइमरी लैंग्वेज की, भाई ये मेरी बेस्ट लैंग्वेज है। अगर आपने पहले पाइथन कर लिया है फिर आप जावास्क्रिप्ट कर रहे हैं और आप प्राइमरी लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट कर रहे हो, नो। लेकिन आपने पाइथन या जावास्क्रिप्ट इसमें से कौन सी करनी है, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आपने अपना करियर किस लाइन में जाना है। अगर आपने वेब डेवलपमेंट में जाना है जावास्क्रिप्ट, मशीन लर्निंग में जाना है पाइथन एंड जावास्क्रिप्ट बोथ, बट पर्सनली आई थिंक कि मशीन लर्निंग में जाने के लिए पाइथन ज़्यादा है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में जो टेंसरफ्लो है वो अभी से यूज़ होने लगा है, ज़्यादा टाइम से नहीं। एंड अगर आपने वेब डेवलपमेंट में जाना है जावास्क्रिप्ट इज़ फॉर यू, पाइथन अगर आपने डाटा साइंटिस्ट में जाना है पाइथन इज़ फॉर यू। सो विद दिस ट्यूटोरियल इज़ ओवर। Want to learn machine learning? This channel is for you. Want to learn Python and JavaScript? This channel is for you. So make sure you hit subscribe my channel. Click on the bell icon for upcoming my Python video and JavaScript video and machine learning. Like, share and comment my video if you like that. Thank you.